وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی واشنگٹن میں امریکی عہدیداروں سے اہم ملاقات ہے۔ ریپبلکن سینیٹر لنزے گراہم سے ملاقات میں پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات، خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ امریکی نائب وزیر دفاع جان راڈ سے بھی ملے، خطے کی بدلتی صورتحال، پاک امریکہ دفاعی تعاون پر گفتگو۔ شاہ محمود قریشی نے امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کی لیڈرشپ سے بھی ملاقات کی۔ میجر جنرل بابر افتخار افواج پاکستان کے نئے ترجمان مقرر۔ میجر جنرل آصف غفور GOC اوکاڑا تعینات۔ میجر جنرل اظہر وقاص DGMI بنا دیے گئے۔ نئے DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار کا کمانڈ اینڈ سٹاف پوزیشنوں پر کام کا وسیع تجربہ۔ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ، NDU اور رائل کمانڈ اینڈ سٹاف کالج اردن سے فارغ التحصیل ہیں۔ سندھ حکومت IG پولیس کی تبدیلی کے لیے ڈٹ گئی، کلیم امام کو ہٹانے کے لیے وفاق کو خط لکھ دیا۔ نئے IG کے لیے مشتاق مہر، غلام قادر تھیبو اور کامران فضل کے نام ارسال۔ وفاق سے بھی IG کے لیے 3 نام مانگ لیے۔ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے درمیان معاملے پر فون پر بات چیت بھی ہوئی۔ مرتضی وہاب کا کہنا ہے کارروائی قانون کے مطابق کی، یک طرفہ کہنا غلط ہے۔ وزیر اعظم نے فیصل وافڈا کی ٹاک شوز میں شرکت پر پابندی لگا دی۔ فردوس عاشقاوان کا کہنا ہے فیصل وافڈا پر پابندی 2 ہفتوں کے لیے لگائی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا اداروں کی ساکھ مجروح نہیں کرنے دیں گے۔ مزید بولیں کہ اتحادیوں کے متعلق افواہیں دم توڑ گئیں۔ وزیر اعظم نے فلاحی پروگرامز کے لیے کمیٹی بھی بنا دی۔ خالد مقبول صدیقی نے وزارت سے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم عمران خان کو بھجوا دیا۔ استعفیٰ خالد مقبول صدیقی کی جانب سے وزیر اعظم ہاؤس ارسال کیا گیا۔ رہنما MQM نے وزیر اعظم سے استعفیٰ فوری قبول کرنے کی درخواست کی۔ بلوچستان میں بارشوں اور برفباری کا نیا سلسلہ آج شروع ہونے کا امکان۔ امریکی سینٹ میں صدر ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز۔ تمام 100 سینیٹرز کا غیر جانبدار رہنے کا حلف، اوتھ بک پر دستخط بھی کر دیے۔ سینٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ہفتے کی شام تک الزامات کا جواب دینے کے لیے سمن جاری کر دیا۔ امریکی صدر پر اختیارات کا ناجائز استعمال، اپنے خلاف تحقیقات میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام ہے۔ میرا مواخذہ پرفیکٹ فون کال کرنے پر کیا گیا، ٹرمپ کا رد عمل۔ بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز کے لیے تیاریاں، قومی ٹیم کا تربیتی کیمپ آج شروع ہوگا۔ قذافی اسٹیڈیم میں کیمپ 23 جنوری تک جاری رہے گا۔ 3 T20 میچز 24، 25 اور 27 جنوری کو لاہور میں ہوں گے۔ ادھر بابر اعظم کی زیر قیادت اسکواڈ کا بھی اعلان، حارث رؤف، احسان علی اور عماد بٹ ڈیبیو کریں گے۔ شاداب خان، عماد وسیم، شاہین شاہ، شعیب ملک اور محمد حفیظ کی واپسی۔ ICC انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ آج جنوبی افریقہ میں شروع ہوگا۔ بھارت اعزاز کا دفاع کرے گا۔ پاکستانی ٹیم پہلا گروپ میچ 19 جنوری کو کھیلے گی۔ ایونٹ میں 16 ٹیمیں شریک ہوں گی۔ ورلڈ کپ کا فائنل 9 فروری کو کھیلا جائے گا۔ پھل اور سبزیاں کھائیے، صحت مند زندگی پائیے۔ نیو یارک کے مقامی میوزیم میں منفرد آرٹ نمائش کا انعقاد۔ پھل اور سبزیاں مجسموں کی صورت میں پیش، منتظمین کی سلاد بنانے اور صحت مندانہ طریقوں کی جانب رغبت دلانے کی کوشش۔ بعد میں شرکاء کو نمائش میں رکھی اشیاء کی سلاد بھی بنا کر کھلائی گئی۔ مایا ناز تخلیق کار عبدالرحمن چغتائی کی آج 45ویں برسی۔ نامور مصور نے لاتعداد اور لازوال خوبصورت فن پارے تخلیق کیے۔ نیشنل کالج آف آرٹس لاہور کا تذکرہ اپنے مایا ناز سپوت عبدالرحمن چغتائی کے ذکر کے بغیر نامکمل۔
पंजाब में देही मईशत के मंसूबे के अहदाफ हासिल न होने का खदशा, सियासी रंग गालिब आने से मंसूबों को कामयाब बनाने की मंसूबाबंदी ठप हो गई। सियासी बुनियादों पर किए गए फैसलों से इन मंसूबों की कामयाबी पर सवालिया निशान लग गया। देही मईशत के लिए बड़े और मौसर मंसूबे कागजों में बनाने के बाद ही नाफिज कर दिए गए। बात करेंगे गौहर अली से। जी गौहर, क्या मामला है? जी, पंजाब में सियासी फैसलों की वजह से देही मेशत के कई मंसूबे नतीजा खेज होना मुश्किल हो गए हैं। पंजाब में फिशरीज के कई मंसूबे मुतारिफ कराए गए हैं, जिनमें केज फार्मिंग, झींगा मछली की परवरिश, 11 मोबाइल ज़राए का क़याम, फीड मिलों का क़याम शामिल है। इन मंसूबों के लिए एक अलग वजारत के क़याम पर जोर दिया जा रहा था, लेकिन फिशरीज की अलग वजारत बनाने की बजाय जंगलात का अलग वजीर बना दिया गया है, जो कि एक बड़ा सियासी फैसला है। इस फैसले को माहिरीन जो है वो पसंद नहीं कर रहे। माहिरीन का कहना है कि जंगली हयात का अलग वजीर है और जंगलात का अलग वजीर है। इससे ये पेचीदगी उन्हें जन्म लिया है कि कहाँ जंगली हयात के वजीर की डोमेन होगी और कहाँ जो है वो जंगलात के वजीर की डोमेन होगी। तो बेहतर ये था कि फिशरीज का अलग वजीर बनाया जाता। इसके अलावा एक तजवीज़ ये भी दी गई थी कि फिशरीज को महकमा लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट में जम कर दिया जाए, ताकि मछलियों की बीमारियों की तशखीस और उनका इलाज हो सके और फिशरीज के मंसूबे जो हैं वो बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ सके। ज़राए का कहना है इससे पहले ये कहा जाता रहा कि फिशरीज के इतने बड़े मंसूबों को चलाने के लिए एक अलग महकमा कायम किया जाए। अगर अलग महकमा कायम नहीं किया जा सकता था तो कम अज़ कम इसका नया वजीर बना दिया जाए। तो फिशरीज का नया वजीर बनाने के बजाय हुकूमत ने एक बड़ा सियासी फैसला करके जंगलात का अलग वजीर बना दिया है और अब सेक्रेटरी जंगलात, सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात और फिशरीज एक ही हैं। उन पर गैर ज़रूरी दबाव बढ़ गया है। इसलिए अब जो मछली के मंसूबे हैं, फिशरीज के जो मंसूबे हैं, उनका नतीजा खेज होना मुश्किल होता जा रहा है। जी ठीक है गौहर, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में पटवारियों की एडजस्टमेंट या लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के खात्मे का मंसूबा, 589 भर्तियों के इश्तिहार की वापसी के लिए इजाज़त तलब कर ली गई है। इश्तिहार वापसी के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से इजाज़त मांगी गई है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सर्विस सेंटर ऑफिशियल की भर्ती का इश्तिहार वापस लेने की मंजूरी दे दी। भर्ती का अमल रोकने से 115 अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स को फाल बनाना मुश्किल हो सकता है। इसी पर बात करेंगे, नवाज संगरा हमारे साथ मौजूद है। नवाज, आगाह कीजिएगा, इश्तिहार वापसी से क्या मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं? जी बिल्कुल, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की तरफ से 599 जो सर्विस सेंट्रल ऑफिशियल की भर्ती के लिए इश्तिहार जारी किया था उसको वापस लेने का फैसला कर लिया गया है और उसके लिए सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो हैं उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो हैं उनको एक नोट अरसाल किया गया है, जिनको उस नोट में वाज़ह किया है कि जो पहले पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 22 दिसंबर 2019 को एक ऐड दिया गया था, उसमें 3 माह का जो है वो IT का डिप्लोमा मांगा गया था उम्मीदवारों से, लेकिन बुनियादी तौर पर जो है वो हमें 6 माह का डिप्लोमा दरकार है, जिसके लिए हमने पंजाब लैंड रिकॉर्ड जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके हुकाम से रब्ता किया है। तो उनकी तरफ से तजवीज़ दी गई है कि अगर इसमें कॉरिजेंडम जारी करें तो इसमें शुबा है कि जो उम्मीदवार हैं वो अदालत में जा सकते हैं। इसलिए बेहतर यह है कि इसके लिए बाकायदा तौर पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब से मंजूरी दी जाए कि अगर ये जो भर्तियाँ हैं इनका ये इश्तिहार वापस लिया जाता है तो पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की तरफ से जो कानून गोई की सतह पर जो 115 राजी रिकॉर्ड सेंटर कायम किए जा रहे हैं उनको जो फाल करने का अमल है वो ताखीर का शिकार हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ ज़राए का ये भी कहना है कि अगर हुकूमत जो है वो नया सर्विस सेंट्रल ऑफिशियल भर्ती करने की बजाय इस बात पर गौर किया जा रहा है कि जो पुराने सर्विस सेंट्रल ऑफिशियल हैं उनको कानून गोई की सतह पर तैनात किया जाए और उनके साथ जो पटवारी हैं उनको ट्रेन करके उनके साथ बिठाया जाए। जी, वज़ारत मज़हबी उमूर की हज फार्मूलेशन कमेटी ताहाल हज पॉलिसी मुरतब नहीं कर सकी। एयरलाइंस ने हज फार्मूलेशन कमेटी से किराया 1,40,000 से 1,47,000 तक करने का मुतालबा कर दिया है। रवां साल सरकारी स्कीम के तहत मुल्की तारीख का महंगा हज पैकेज तैयार किए जाने का इम्कान है। इसी पर तफसीलात देखिए इस्लामाबाद से फ़हीम अख्तर की रिपोर्ट में। वज़ारत मज़हबी अमूर की जानिब से पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन हज पैकेज बनाने की तैयारियाँ जारी। वज़ारत मज़हबी अमूर के ज़राए के मुताबिक रवां साल सरकारी हज स्कीम के तहत हज पैकेज 5,36,000 से बढ़ने का इम्कान है। वज़ारत की हज फार्मूलेशन कमेटी हज और सफरी खर्चात में इजाफों से परेशान है।
रवां साल 2020 में हज पैकेज में मजीद 1 लाख रुपए से जायद का इजाफा होगा। गुज़श्ता साल कुर्बानी के बहर शुमाली पैकेज 4,36,000 जबकि जनूबी रीजन का पैकेज 4,26,000 था। ज़राए के मुताबिक एयरलाइंस के इजाफी किरायों के मुतालबात हज फार्मूलेशन कमेटी का दर्द सर बन गया, जिसकी वजह से हज फार्मूलेशन कमेटी ताहाल हज पॉलिसी भी मुरतब न कर सकी। वजारत मज़हबी अमूर की हज फार्मूलेशन कमेटी और एयरलाइंस के दरमियान डेडलॉक हो गया है। हज पॉलिसी 2020 का हज किराया फाइनल न होने की वजह से मुसलसल तवा का शिकार है। एयरलाइंस ने हज फार्मूलेशन कमेटी से किराया 1,40,000 से 1,47,000 तक बढ़ाने का मुतालबा किया है, जिसे वफाकी मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी ने मुस्तरद कर दिया है। एयरलाइन से मामला तय होने पर हज फार्मूलेशन कमेटी हज पॉलिसी को हतमी शक्ल देकर वफाकी काबीना से मंजूरी लेगी। फहीम अख्तर, नेशनल न्यूज़, इस्लामाबाद।